ہاں جی، چلیں کریں بتائیں۔ جی سسٹر جی، گواہی مطلب سنانے کو تو بہت میری لمبی ہے، لیکن یہ کہ میں شارٹ کٹ الفاظوں میں آپ کو نا ہاں جی، ہاں جی، اپنی ٹیسٹ منی سناتا ہاں جی، ہوں۔ میں ایک خواجہ سرا ہوں اور میرا نام شاہد صادق ہے، اور میرا اپنی فیلڈ میں نام میرا ببلی نام تھا۔ تو مطلب بچپن ہی سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جب خواجہ سرا گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ مطلب نہیں بتاتے لوگوں کو، تو اسی طرح میں بھی ایک نامی مسیحی فیملی میں پیدا ہوا، تو جو بڑھتا گیا اسکول میں بھی جاتا رہا، تو بچپن سے ہی عادات جو میری تمام لڑکیوں والی نا، تو گھر میں باجی کے دوپٹے لینے، لڑکیوں والی چیزیں استعمال کرنی، بھائیوں نے مطلب مارنا پیٹنا، انہوں نے کہنا یہ کیا چیز ہے نا ہم میں، تو والد تو مطلب پر ہے، تو ابو جو میرے تھے وہ مطلب میں چھوٹا سا تھا تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو بھائی تھے بڑے، گھر میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا، تو اسی طرح بڑھتا گیا تو میری عادات زیادہ نہ لڑکیوں والی ہوتی گئی، اسکول میں بھی مطلب لڑکوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو مطلب پتا چل گیا کہ یہ چیز ہے، کیونکہ الگ تھا، ایک ڈیفرنٹ تھا نا عام مطلب پرسن سے الگ تھا میں، چال ڈھال یہ مطلب بات نزاکت سے کرنی، ہاتھوں کے ساتھ اشارے کر کے، تو ان کو بھی پتا چل گیا کہ میں کیا چیز ہوں نا، تو مطلب اسکول میں بھی مجھے تنگ کرنے لگ پڑے سب نا، تو میں ایک دن آیا گھر تو میں نے کہا امی میں نے نہیں پڑھنا نا، اسکول میں بھی مجھے تنگ کرتے ہیں سب، تو میں نے نہیں جانا، تو امی مطلب گلے لگا کے تو روئی، تو امی نے کہا تو اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا امی میں کیا کروں، میں مطلب لڑکا نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو لڑکا ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، میں کیا کروں، یہ ہے وہ ایسے نا، تو بھائی نے نا آ کے بھائی نے سن لیا، بھائی نے بھی مجھے مطلب ٹھیک ٹھاک پھر نہ مارا، مجھے پیٹا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان کے ماں کھا کھا کے اکتا گیا، تنگ ہو گیا، تو میں گھر سے باجی بھاگ گیا، جب گھر سے بھاگ گیا تو بہت سی تکلیفیں میں نے سہیں، بہت سی مشکلات سہیں، میں نے ایک خواجہ سراؤں کے گروپ کو جوائن کر لیا، تو میں اپنے گھر سے مطلب جیلم سے بہت دور چلا گیا منسیرے تک، وہاں پہ رہا، تو وہاں مطلب 8 9 سال کے دوران میں کمپلیٹلی ایک خواجہ سرا بن چکا تھا، تو ہمارے جیلم میں ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے نا، تو 8 9 سال کے بعد کیا ہوا کہ مطلب میلہ کرنے کے لیے میں آیا نا، ادھر ہی میلہ کرنے کے لیے آیا، تو میرے نا بھائیوں نے، میں ڈانس کر رہا تھا تو میرے بھائیوں نے مجھے مطلب وہاں بھائیوں کے دوستوں نے نا دیکھ لیا، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، لیکن میں نے ان سے نظریں چرائی، میں نے کہا کہ وہ مجھے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تو شاید بھائی ہے نا؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں شاید بھائی، یہ ہے وہ ہے، تو ایک لڑکا میرے بھائی کا نا مطلب بہت خاص دوست تھا، تو اس نے نہ جا کے بتا دیا کہ آپ کا بھائی تو ایسے ایسے، یار وہ تو صحیح لڑکی بنا ہے، تو وہ ایسے ایسے نا ڈانس کر رہا ہے ادھر، تو ایسا کرو کہ تم جا کے نا اسے پکڑ لو، میرے بھائی آگے، تو بھائی جب آئے نا دونوں بھائی آگے بڑھے، تو وہ سیدھا نا موت کے کنویں میں اندر آگے، تو وہ مجھے نا پکڑنے لگے، تو میں نے نا سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے کر لی جو موت کے کنویں کے مالک تھے، ان کو میں نے بولا کہ یہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے نا، تو وہ نا ان کو مارنے لگ پڑے نا، تو پھر بھی دل میں نا ایسے ترس آیا کہ ہے تو میرے بھائی ہیں نا، تو وہ نا پولیس بلوانے لگے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے خواجہ سرا کو ایسے ایسے تنگ کر رہے ہیں، یہ زبردستی اس کے ساتھ رشتہ بنا رہے ہیں، جبکہ ہمارا خواجہ سرا اس کو جانتا ہی نہیں ہے ان کو نا، تو میرے دل میں نا پھر بھی رحم آیا، میں نے کہا یہ ابھی پولیس آئے گی، انہیں پکڑے گی، لے جائے گی، مارے گی، پتہ نہیں کیا کرے گی، میرے دل میں نا رحم آیا، تو میں نے ایک دم سے نا مالک کو بولا جو موت کے کنویں کا مالک تھا، میں نے کہا نہیں ان کو کچھ نہ کہیں، میں نہیں جھوٹ بولا، واقعی یہ میرے نا بھائی ہیں، تو بھائی کہتے ہیں کہ چل گھر، ماں کو شوگر ہو گئی، امی تیری جدائی میں اتنی مطلب بیمار رہتی ہیں، ان کو شوگر ہو گئی ہے، تو ایسے کر گھر چلنا، میں نے کہا نہیں آپ مجھے پھر مارو گے، آپ میرے بال کاٹ دیتے ہو، آپ میری سچویشن کو سمجھتے نہیں، آپ سب کو پتا بھی ہے کہ میں جو چیز ہوں، میں ایک خواجہ سرا ہوں، آپ پھر بھی میرے ساتھ ایسے ظلم و ستم کرتے ہو، تو میں نے نہیں جانا، تو بھائی نے کہا نہیں ہم تجھے قسم دیتے ہیں کہ تو چل گھر، ہم تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے، تو ایک مرتبہ گھر چلنا،
मैं बाजी घर चला गया, घर गया तो जब मतलब जुदाई का सबब होता है, वो एकदम से सारे रोने लग पड़े, सिस्टर रोने लग पड़े, मतलब ना सारे गले लग लग के ऐसे एक मातम का ना मंजर हो गया मेरे घर में ना। अम्मी भी रोई बहुत, अम्मी ने कहा कि तू अब कहीं भी नहीं जाएगा ना मुझे छोड़ के। तो भाइयों ने भी कहा कि ठीक है यार, तू ना अम्मी को छोड़ के कहीं भी न जा, तू इधर ही रह, तो हम तुझे कुछ भी नहीं कहते ना, तू तेरा जो दिल करता है तू करना। तो मतलब हमें छोड़, तो मैंने कहा चले ठीक है। तो बस ये कि शॉर्टकट यही है कि बाजी खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया। मैं ख्वाजा सरा था, खुदा से बहुत दूर था, लेकिन ये है कि खुदा ने मुझे मेरी जिंदगी में एक बड़ा काम किया, मुझे अपनी तरफ ले करके आया। मैं गैर मबूदों को मानने वाला ख्वाजा सरा था, दरबारों पे नाचने वाला सब कुछ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दरबार पे बैठा, दरबार पे गए तो मतलब पूरा ग्रुप मेरा गया, तो मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ तो देख रहा हूँ कि लोग मन्नतें चढ़ा रहे हैं, नाच रंका रहे हैं। मैं भी उन्हीं में शामिल था, मैं भी यही करता था, कुर्बानियां चढ़ानी ये वो सारा कुछ। तो एक दफा खुदा के पाक रूह ने, मतलब खुदा से मैं कोसों दूर था, खुदा का पता ही नहीं था मुझे कुछ भी। तो लेकिन ये कि हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो वहां पर बैठे हुए खुदा ने मुझे झंझोड़ा। तो खुदा, क्योंकि बाइबल में देखे लिखा है कि अच्छी चीजें, अच्छी सोचें जो है वो नूरों के बाप की तरफ से होती हैं। तो खुदा ने मुझे झंझोड़ा कि ये क्या करें, ये तो लोग मरे हुए हैं, तो इनके आगे ये झुक रहे हैं, नाच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो एकदम से ना खुदावंद ने मेरे दिल को ना सख्त किया कि यहाँ से उठ। तो मैं ना एकदम से, हालांकि ये हमारा टूर जो था वो 10-12 दिनों का था, तो खुदावंद ने कहा कि यहाँ से उठना। तो मैंने अपने चेलों को बोला कि मैं जा रहा हूँ घर वापस, तो मैंने इधर नहीं रहना ना, ये है वो है। तो चेले भी परेशान हो गए, क्या हो गया इसको ना। तो मतलब वो खुदा का पाक रूह मेरी जिंदगी में काम करना शुरू हो गया। फर्स्ट स्टार्टिंग वहां से मेरी शुरू हुई। तो मैंने ना बाजी क्या किया, वहां से ना ट्रेन पकड़ी और मैं झेलम आ गया, घर आ गया। घर आया हूँ तो जिधर मतलब मेरा अपना सेपरेट घर था, घर वालों से मैं सेपरेट रहता था, क्योंकि चेले बाल के थे मेरे, उसके दौरान मेरे बहुत सारे चेले हो गए हुए थे। अपने घर में आ गया तो मतलब एक अजीब सी कैफियत बाजी, एक अजीब ज़हन में सोचें कि क्या करूं। उसके दौरान क्या हुआ बाजी कि मुझे ना किसी डॉक्टर ने बता दिया कि आपको डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई है, किसी ने मुझे दिल का मसला बता दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, मतलब टेंशन में, बहुत टेंशन मेरा। तो एक दिन क्या हुआ कि बाजी मैं अपने कमरे में सो रहा, अपने रूम में सोया हुआ हूँ, तो मैंने क्या मतलब देखा कि कोई शख्स है ना ऐसे, मतलब नूरानी, मतलब जिस तरह कह लें कि बर्फ की मानद नहीं होते स्केच जो बने होते हैं, इस तरह का मैंने इंसान देखा जो दरवाजे के पास खड़ा ना। तो मैं एकदम से डर के ना उठ पड़ा। मैंने लाइट ऑन की तो वो फौरन से ना, उसकी मैंने पाँव से मतलब नजर की, पाँव नंगे नंगे पाँव थे, और पोशाक ऐसे जैसे सही जिस्म के साथ ही उसके कपड़े चिपके हुए हैं। वो देखा ना तो बाहें उसने मेरी तरफ बुलाई हैं, फैलाई हुई है। बस मैंने ये देखा, उसने ना बात की ना कुछ ना कुछ मेरे साथ। मैंने एकदम से लाइट ऑन की तो देखा वहां पे कुछ भी नहीं था ना। उसके बाद क्या हुआ कि बाजी खुदा ने मुझसे क्या करवाया, दूसरे दिन ही मैंने अपनी तस्वीरों को तोड़ दिया। जो बड़ी बड़ी मैंने तस्वीरें लगाई हुई वो तोड़ दी, सब कुछ तोड़ फाड़ के मैंने ना ज़हन बना लिया कि मैं ना इस काम को छोड़ूंगा। तो उससे पहले उससे ये हुआ था कि मैं भाई के घर गया था, तो भाई मेरी फैमिली सारी खुदा में आ चुकी थी, एक मैं ही सिर्फ रह गया हुआ था। तो एक दफा मेरी अम्मी भी ना, जिधर मैं मतलब मेरे घर थे वो इलाका भी मेरे में था ना, तो मैं बधाइयां लेने गया तो मेरी माँ ना संडे का दिन था, चर्च जा रही थी वो ना। तो अम्मी ने ना मुझे देख लिया तो अम्मी वहां पे रुक गई। तो चर्च के दरवाजे के पास से मैंने गुजर के ना जाना था बधाइयां लेने के लिए ना, तो अम्मी वहां पे रुक गई। अम्मी कहती है मुझे चल आज तू चर्च चल। मैंने कहा आई अम्मी क्या बात कर रहे हो आप, मैं ऐसे जाऊं लोग क्या कहेंगे, ये है वो है। अम्मी कहती है जिसके पास तुझे मैंने लेके जाना है ना, वो मैं उसके पास लेके जा रही हूँ, मैं लोगों के पास नहीं तुझे लेके जाऊंगी, तो तू चल। मैंने कहा अम्मी नहीं ना। अम्मी कहती है तू चल तो सही, देखना तू जिसके लिए मैं तुझे कह रही हूँ, तू वहां पे चल तो देखना खुदा तुझे रोजी रिजक भी कैसे देगा। तो मैंने ना मतलब
ये ज़हन में लालच रख के मैंने कहा चलो खैर है चलते हैं। मैंने चेलों को कहा आओ चले, हम सारे चर्च चले गए। वहां पे मरासी मतलब जो उस्ताद लोग होते हैं हमारे साथ ढोलके बजाई, चेले भी डांस किए चेलों ने। और एक गीत मैंने सिर्फ ना मतलब ज़हन में रखा हुआ था, क्योंकि मतलब जन्म तो मसीह खानदान में था ना, बेशक चाहे वो कैथलिक थे या जो भी थे, लेकिन ये कि जन्म तो मेरा वहीं पे हुआ था। तो कॉन्वेंट स्कूल का मैं पढ़ा था। तो मतलब एक गीत मुझे याद आता था, ये वाला ही ना, रब खुदावंद बादशाह है, ज़बूर ना। हाँ जी। तो हमने ये गाया बाजी, तो सारे चेले भी डांस करने लग पड़े, सारे नाच नाच के हमने गाया, तो सारे बड़े ना खुश हो गए। उन्होंने कहा देखो यार क्या बात है, शायद कि अम्मी आज से चर्च ले आई है, ये है वो है। बाजी उसके बाद क्या हुआ कि मेरी ना वालदा जी की डेथ हो चुकी, वालदा की डेथ हो गई थी ना बाद में ना। तो तकरीबन कह लें कि 1 मंथ के बाद ना उनको डायबिटीज थी, उसकी वजह से ना उनके जो थे गुर्दों का प्रॉब्लम हो गया था, तो उनकी डेथ हो गई। तो बाजी फिर ये क्या हुआ कि मुझे खुदा नहीं बस ऐसे छुआ। तो भाई मेरे ने ना मुझे बाइबल दी, उसने कहा तू ये पढ़ा कर देखना तो सही। जूं जूं बाइबल बाजी में पढ़ता गया हूं ना, तो बस दिल को तस्कीन, दिल में सुकून, इत्मीनान। और जब मैं ये साया नबी के सहीफे पे आया ना बाजी, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल का मैं पढ़ा था, मतलब 5 पढ़ा हूं मैं तो। लेकिन आपको पता है कॉन्वेंट स्कूलों की तालीम जो अच्छी होती है, तो उर्दू में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी लेता था, तो मतलब बोल भी लेता हूँ। तो जब मैं ये साया नबी के सहीफे पर आया ना बाजी, उसके 56 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर मैंने 15 आयत तक पढ़ी ना, तो वहां पर लिखा कि खोजा ये ना कहे कि मैं सूखा दरख्त हूँ, हाँ? और जो खोजे खुदा के सबतों को मानते और उसे पाक रखते हैं और जो काम खुदा को पसंद है वो करते हैं, तो खुदा उन्हें अपनी 4 दीवारी में एक ऐसा नाम बख्शेगा, वो अब्दी नाम होगा ना जो। तो बाजी जब मैंने ये चीज पढ़ी ना, तो मेरे आंसू एकदम से जारी हो गए, मैं रोता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ। तो मेरी ना आंसू बाइबल के पेज पर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो मैंने कहा ओ खुदावंद तू इतना प्यार हमसे करता है कि जिन्हें इंसान मतलब नफरत की निगाह से देखता है, बदकारी की निगाह से देखता है, तो खुदावंद तू इतना प्यार करता है। तो दुनिया वाले तो सिर्फ अपनी खुशियों में हमें शामिल करते हैं सिर्फ, लेकिन हमारा गम कोई भी नहीं देखता। तो तू इतना प्यार करता है, तूने कहा कि बेटियों और बेटों से भी बढ़ के तू हमें प्यार करता है। जब बाजी मैंने ये पढ़ी है ये चीज, तो कह ले इस आयत ने ना मेरी जिंदगी बदल के रख दी बाजी। फिर मैंने उसी रात को बाजी करार कर लिया खुदावंद से, मैंने कहा खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी बंदगी करूंगा, जरूर करूंगा खुदावंद, और मैं आज से ही अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। इकरार मैंने कर लिया बाजी, रात को मैंने इकरार कर लिया। सुबह जब हुई तो मैंने अपना सारा सामान जो था ना घर का, मेरा मतलब 8-9 लाख का सामान मैंने क्या किया बाजी, 2 लाख में बेच दिया। 2 लाख में बेच के, तो मेरे हिजड़ों को नहीं पता, मेरे किन्नर्स को किसी को नहीं पता, ना गुरु को पता, किसी को नहीं पता। मैं अपने घर आ गया। अपने घर जब आ गया तो घर आके मैंने क्या किया, मैंने अपनी चुटिया खुद काट दी ना, मेरे बाल बहुत लंबे थे जी, तो मैंने खुद अपनी चुटिया काट दी, अपनी ना अपनी चुटिया काट के मैंने फेंक दी, और मोहल्ले में रोला पड़ गया जी। वाह जी वाह, खुदा ने कितना बड़ा काम कर दिया एक जिंदगी में। कितने सालों से जो गुनाह की जिंदगी बसर कारी थी, तो उसने तौबा की उसको ख्वाजा सरा ने, तो वो खुदा की तरफ आ गया। तो आगे क्या हुआ बाबा जी, हफ्ते का दिन था जब मैंने चुटिया काटी, तो रात का टाइम था, मैंने जब चुटिया काटी तो मैंने ना अपने भाइयों को भाभियों को सबको बोला कि मैंने कहा मैं ना चर्च जाना चाहता हूँ। आगे संडे था, तो भाभियां बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा कि वेरी गुड, तू चल हमारे चर्च, तो देख खुदा कितना अजीब काम करेगी। तो वाकई बाजी जब आगे मैं गया, मैंने मतलब ना सबसे मिला, सलाम दुआ की पास्टर जी से, सब बड़े खुश हुए ना। तो उसी दिन बाजी मतलब उस चर्च घर आके मैंने क्या चीज को मैंने ना जेल में रखा हुआ था, तो मुझे इत्मीनान था। सबको बपतिस्मे पास्टर जी दे, पानी के बपतिस्मे आ गया। अपने घर जब आ गया तो क्या हुआ बाजी, हफ्ते का दिन था जब मैंने चुटिया काटी, तो रात का टाइम था, मैंने जब चुटिया काटी तो मैंने ना अपने भाइयों को भाभियों को सबको बोला कि मैंने कहा मैं ना
चर्च जाना चाहता हूँ। आगे संडे था तो भाभियां बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा कि वेरी गुड, तू चल हमारे चर्च तो देख खुदा कितना अजीब काम करेगी। तो वाकई बाजी जब आगे मैं गया, मैंने मतलब ना सबसे मिला, सलाम दुआ की पास्टर जी से, सब बड़े खुश हुए ना। तो उसी दिन बाजी मतलब उस चर्च में पानी के बपतिस्मे थे। तो जब ना पानी के बपतिस्मों की बारी आई तो उन्होंने बोला कि आज बपतिस्मे है, तो मैं खुशी से ना ऐसे खिलखिला उठा। तो मैंने कहा पास्टर जी मैंने भी बपतिस्मा लेना है। तो और वो खुश हो गए, उन्होंने कहा हाँ जी जरूर, क्यों नहीं देंगे, आपको भी बपतिस्मा देते हैं, हम आज ही देंगे। तो बाजी उसमें मतलब काफी लड़कियां थी, काफी लड़के थे। तो मैं एक ख्वाजा से रहा था, ये हुआ कि हम गए दरिया पर, वहां पे बपतिस्मा लिया। तो खुदावंद यीशु मसीह को मैं अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके पानी का बपतिस्मा लिया। और जो ही जब सबको बपतिस्मे पास्टर जी दे चुके तो हम सब बाहर आए। तो बाजी मतलब चेन बना के हम प्रे कर रहे थे, तो उसी वक्त ना खुदा ने मुझे गैर जुबानों का गिफ्ट भी दे दिया। उसी रोज जब मैंने बपतिस्मा लिया तो खुदा ने मुझे गैर जुबानों का बपतिस्मा भी दे दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं मतलब खिदमत में मसरूर हो गया। तो 10 दिनों के बाद ये हुआ कि मेरे ख्वाजा सराओं को पता चल गया, मुझे तरह तरह की धमकियां देने लग पड़े, मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा जो मर्जी कर दो, मैंने आज के बाद मतलब ये काम नहीं करना। तो फिर ये कि बाजी खुदा ने जिंदगी में जलाली काम कर दिया, मतलब गुरु भी मेरा फोत हो गया। तो खुदा ने जलाल जाहिर करना था, वो भी फोत हो गया, क्योंकि वो भी रुकावट डालता था खुदा के काम में, वो भी फोत हो गया। तो मैं फिर अपने घर आ गया बाजी। तो उसके मतलब दौरान मैंने बहुत सी मुश्किलात सही, लेकिन मुझे खुदा की बातें याद आती थी, ये जंग तेरी नहीं, ऐसी ऐसी ना वर्षें मुझे याद आती थी कि खुदा कहता है बाइबल मुकद्दस में, खुदा ने कहा है कि वो अपने लोगों की जंग लड़ता है, वो अपने तालबों की दुआओं पर कान लगाता है। ऐसी ना मतलब छोटी छोटी वर्सेस को मैंने ना जेन में रखा हुआ था, तो मुझे इत्मीनान था। लेकिन मुश्किलात बहुत सी सही मैंने तो, लेकिन ये कि आज खुदावंद का फजल है, शुक्र है खुदावंद का। तो आज मैं अपने जिंदा खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। तो आज मुझे 9 साल हो गए बाजी खुदा की खिदमत में मसरूर हूँ। तो मेरी जिंदगी के वसीला से खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया और आज 6-7 ख्वाजा सरा जो है खुदावंद के कदमों में आ चुके हैं। और आम जिंदगी तो बहुत से मतलब खुदावंद के पास है, सारा इज्जत सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम को जाता है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो यीशु जी के नाम को सारा इज्जत और जलाल है जो हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। तो इसके दौरान फिर एक बहुत कह ले कि एक बहुत बड़ी बुरी बात हुई कि क्या हुआ कि मेरी जिंदगी में एक मर्तबा फिर मैं गिर गया। इन 9 सालों के दौरान ना मैं गिर गया। इब्लीस काम करता है मतलब जिंदगी में ना, तो हाँ जी, तो मैं फिर अपनी फील्ड में चला गया ना, तो गिर गया। लेकिन ये कि खुदावंद ने ज्यादा देर मुझे गिरने नहीं दिया, अपनी फील्ड में गया तो 3 दिन से ज्यादा मुझे वहां पे रहने नहीं दिया। तो खुदा मुझे वापस लेकर के आ गए। तो फिर मैंने जाना कि वाकई खुदावंद तेरे नबी भी तेरे आगे से भागे हैं, नबियों ने भी ऐसा किया। लेकिन मैंने ये जान लिया कि जिसे खुदा एक मर्तबा पकड़ लेता है ना, खुदा उसे फिर जाने नहीं देता बाजी। यूना नबी देख लीजिए, खुदा ने उसे किधर भेजा और वो अपनी मर्जी करके कहीं और चला गया, लेकिन खुदा ने मछली को हुक्म दिया तो मछली उसे नैनवा में ले गई। ठीक है ना। तो इसी तरह बाजी खुदा ने मुझे भी मतलब जाने ना दिया। तो मैंने ये जान लिया कि खुदा जिसे एक मर्तबा पकड़ लेते हैं ना, उसे जाने नहीं देते। तो आज ये कि खुदा, मैं एक छोटा सा खुदा का बर्तन हूँ जो खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं बाजी। सारा इज्जत सारा जलाल खुदावंद के नाम को है। आमीन आमीन। मैं इसकी उन तस्वीरों को देखकर मैं खुद हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये बंदा है। उन्होंने कहा हाँ ये वो शख्स है, लेकिन इसने अपनी जिंदगी मसीह को दी, तौबा की और प्रॉपर बाइबल सीखी और अब खिदमत करना चाहता है। जोरदार तालियां बजाइए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आमीन।